اور آپ کو بتائیں کہ جناح ہاؤس پر دھاوا بولنے والے اہم حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور میاں فاروق نذیر لاہور کینٹ کا رہائشی ہے۔ 9 مئی کو میاں فاروق نذیر ریلی کے ساتھ جناح ہاؤس کیا۔ میاں فاروق نذیر تمام تر سانحے کی ویڈیوز اپنے موبائل فون سے بناتا رہا۔ پولیس نے تمام اہم ویڈیوز حاصل کر لی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے ایک اور اہم آور کی جو ہے وہ شناخت ہو گئی ہے۔ حملہ آور میاں فاروق نذیر نامی ڈیولپر لاہور کینٹ کا رہائشی ہے اور 9 مئی کو میاں فاروق ریلی کے ساتھ جناح ہاؤس کیا۔ میاں فاروق نے تمام تر ثانیہ اس کی ویڈیو اپنے موبائل سے جو ہے وہ بناتا رہا، جو ہے وہ تمام ویڈیو حاصل کر لی ہیں اور شرپسند میاں فاروق حکومت کو للکارتا رہا۔ ویڈیو جو سامنے آئی ہیں پولیس کے پاس جو ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی اس نے وائرل کی ہیں۔ شرپسند میاں فاروق کو حکومت کو للکارتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ شرپسند میاں فاروق لوگوں کو آگ لگانے کا بھی کہتا ہے اور جلاؤ گراؤ کا بھی کہتا ہے۔ اس والے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ میاں فاروق کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ انویسٹیگیشن اور اس کے علاوہ جو آپریشن کی ٹیمیں ہیں، CIA کی ٹیمیں ہیں اور CTD کی ٹیمیں کو جو ہے وہ میاں فاروق کو گرفتار کرنے کا جو ہے وہ ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ تمام جو ٹیمیں ہیں ان کو لوکیٹر بھی دے دیے گئے ہیں اور اس والے سے لاہور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ میاں فاروق کو جو ہے وہ شناخت سامنے آ گئی ہے اور اس کے جو عزیز و اقارب ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ لگا لیا گیا ہے۔ جلد جو میاں فاروق ہے اس کو گرفتار کر لیا مدثر جائے گا۔ یہ بھی بتائے گا کہ کیا میاں فاروق PTI کا کوئی اہم عہدیدار ہے؟ جی بالکل، یہ اہم سرگرم کارکن ہے میاں فاروق، اور جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کا کہتا ہے اور اس کے بعد جو کارکن ہیں جو PTI کے ان کو مزید جو ہے وہ اکساتا ہے جلاؤ گراؤ کرنے پر، اور اس حوالے سے یہ بڑا اہم جو ہے وہ ملزم ہے شرپسند ناصر ہے، جس نے جناح ہاؤس اور اسکی ٹاور میں جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اہم سرکاری عمارات بھی جو ہیں وہ جلائی گئی ہیں۔ تو اس والے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم جب پکڑا جائے گا تو اس کے جو دیگر ساتھی ہیں اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اس سے تفتیش کی جائے گی اور اس کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ تو اس میں جو مقدمات درج ہیں PTI کے خلاف اس میں جو ہے وہ اس ملزم کو میاں فاروق نذیر کو نامزد کیا جائے گا اور پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ پولیس اب تک جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب بھر سے 3800 کے قریب جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے۔ لاہور میں جو ہے وہ 1900 کے قریب ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن کے خلاف جو مقدمات درج ہیں 38 کے قریب جو ہے مقدمات جو ہیں لاہور سمیت لاہور کے مختلف تھانوں میں درج ہیں، جن میں جو ہے ان ملزمان کو جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں جو ہے ان ملزمان سے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے اور CCTV فوٹیج اور تمام ویڈیوز کی مدثر شناخت تو کر لی گئی ہے، پولیس اس شخص کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بالکل، اس حوالے سے جو ہے وہ ملزمان کی لوکیٹر حاصل کیا گیا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ ملزمان لوکیٹر کی مدد سے اس کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کرے گی، کیونکہ اس سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملزم نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، کہیں پر جو ہے وہ روپوش ہے۔ تو اس والے سے پولیس سے کہہ رہے ہیں کہ شناخت سامنے آنے کے بعد اب اس کی گرفتاری اتنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ اب جو ہے وہ اس کے جو ساتھی ہیں اور اس کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ ملزمان کو جو اہم ملزم ہے، مرکزی ملزم ہے، اس کو گرفتار کیا جائے گا اور جو مقدمہ جو سرور روڈ اور اس کے علاوہ گلبرگ میں درج ہے اس میں اس کو نامزد کیا جائے گا اور تفتیش کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ جی شکریہ مدثر۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی اداروں پر حملے، توڑ پھوڑ، تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا معاملہ۔ لاہور اور پنجاب بھر سے اب تک گرفتار شرپسندوں کی تعداد 3800 سے زائد ہو گئی۔ لاہور سے اب تک 2000 کے قریب شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے رات گئے بھی کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ شرپسند عناصر کی پرتشدد کارروائیوں میں پنجاب بھر میں 162 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے زیر استعمال 97 سے زائد گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ پولیس اسٹیشنز اور دفاتر سمیت 22 سرکاری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، وفاقی وزراء سمیت نون لیگی رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس میں ملکی معاشی سیاسی صورتحال اور قانونی معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ میں جاری مقدمات بارے مشاورت بھی کی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سپریم کورٹ میں جاری مقدمات بارے بریفنگ۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। वफाकी वज़रा समेत नून लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की है। इजलास में मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल और कानूनी मामलात का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की लीगल टीम से सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे मुशावरत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ को 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स और जवानों से खिताब किया। आर्मी चीफ ने मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने जिना हाउस का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौका पर कहा कि फ़ौज अपनी ताकत आवाम से हासिल करती है। आर्मी चीफ ने सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा किया। ज़ेर इलाज DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की आयादत की। अलावा जी आर्मी चीफ कुर्बान लाइन्स भी गए, जहां आर्मी चीफ ने पुलिस हुकाम से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने पुलिस के शोहदा को भी खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने फसादात और तोड़ फोड़ के दौरान पुलिस को पेशा वराना महारत और तहम्मुल को सराहा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अवामी रिक्शा यूनियन की पाक फौज से इज़हार यहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली अमेरिकन कौंसलेट से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली की क़यादत मरकज़ी चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने की। सिविल सोसाइटी वकला, मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों और सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें जो है मजदूर, वकला और मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेरे साथ इस वक्त अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरपर्सन मजीद गौरी मौजूद हैं। इन्हीं से ही बात करते हैं। जी सर, बताइएगा इस रैली का क्या मकसद है? पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए पाक फ़ौज की तनसीबात को निशाना बनाया और पाक फ़ौज के ऊपर कीचड़ उछाला गया। कानून नाफज करने वाले कोई भी इदारे हों, वो पाकिस्तान का हुस्न है, उनसे पाकिस्तान है। हम तमाम सियासतदानों को कहना चाहते हैं कि अपनी सियासत की भेंट इन इदारों को मत चढ़ाएं। अपनी कुर्सी की खातर पाक फ़ौज को, रेंजर को, एयरफोर्स को, अदलिया को निशाना मत बनाएं। हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि मत समझे आप जो खुशियाँ मना रहे हैं ना, पाकिस्तान का बच्चा पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है। फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। ठीक है जी। हम कल इंशाअल्लाह ताला जिना हाउस जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग, वकला बरादरी और ख़वातीन, बच्चे, बेटियां, ये सब हमारे साथ वहाँ पर कल जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी पाक फ़ौज से कल इज़हार यकजहती करेंगे और तंबीह करते हैं सियासतदानों को कि ऐसे अमल से बाज रहे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि पाकिस्तान है तो पाक फौज है, तो हम जो है वो पाकिस्तान के साथ और पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का जो हर बच्चा है वो पाक फौज के शाना बशाना इसी तरीके से ही खड़ा रहेगा। जी शुक्रिया सामिया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी का CBD पंजाब वॉल्टन साइट का दौरा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन और एग्जेक्टिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने ब्रीफिंग दी। CBD पंजाब बोर्ड ने मंसूबे के लिए 23 अरब की मंजूरी दी थी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि कलमा अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे की तरह इसे भी मुकम्मल करें। वॉल्टन रोड के रहायशियों के लिए ट्रैफिक जाम, सेवरेज जैसे मसाइल हल होंगे। जाहिद आबिद से मज़ीद जानते हैं। जी जाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज CBD वॉल्टन पेज का दौरा किया और वहाँ पर CBD हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग दी, जिसमें CEO CBD पंजाब इमरान अमीन और एग्जेक्टिव डायरेक्टर टेक्निकल CBD पंजाब रियाज हुसैन ने मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि CBD फेज़ 1 को फेज़ 2 वॉल्टन से मिलाने के लिए मेन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके अलावा रेलवे लाइन्स के लिए अंडरपास भी बनाया जाएगा, जबकि वॉल्टन रोड की दूसरी मेन ड्रेन ADC को भी दोबारा बनाया जाएगा, जिससे इस इलाके का जो बरसाती पानी का और आबपाशी का मसला है वो हल हो सकेगा, जबकि मेन ड्रेन की अपग्रेडेशन से डिफेंस वॉल्टन रोड के सीवरेज मसाइल भी हल होंगे। CBD पंजाब की ब्रीफिंग में बताया गया CBD पंजाब लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तर्ज पर अपग्रेड कर रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि CBD पंजाब की काबिलियत पर पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि भावे पाकिस्तान वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबा वॉल्टन रोड के रहायशियों के लिए ट्रैफिक जाम, सीवरेज जैसे दरीना मिसाइल जो हैं उन्हें भी हल करेगा। जी
ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی میو اسپتال آمد۔ ڈاکٹر عثمان انور نے اسپتال میں زیر علاج انسپکٹر اقبال خان کی عیادت کی۔ آئی جی پنجاب نے انسپکٹر اقبال خان کو گلے لگایا اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ آئی جی پنجاب کا انسپکٹر اقبال خان کے لیے مزید 10 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل عجیب جناب ڈاکٹر عثمان انور نے میو اسپتال جو ہے وہ لاہور ان کی آمد ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے اسپتال میں زیر علاج میاں والے کے غازی انسپکٹر اقبال خان کی عیادت کی ہے۔ غازی انسپکٹر اقبال خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے میاں والی دورے کے بعد لاہور میو اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ آئی جی پنجاب نے انسپکٹر اقبال خان کو گلے لگایا، پیار کیا اور خیریت دریافت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے بھی آئی جی پنجاب نے دعا کی۔ آئی جی پنجاب نے ایڈیشنل ایم ایس میو افسر ڈاکٹر غلام فرید سے انسپکٹر اقبال خان کے علاج اور معالجات کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے عارف سگودہ کو انسپکٹر اقبال خان کے لیے فوری امدادی رقم فراہم کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ عجیب پنجاب نے غازی جو ہے وہ انسپکٹر اقبال خان کے لیے مزید 10 لاکھ روپے امداد دینے کا بھی اعلان کیا۔ اس وجہ سے عجیب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ انسپکٹر اقبال خان محکمہ پولیس نے جرات اور بہادری کی نئی داستان رقم کی ہے۔ شاندار کارکردگی پر حکومت سے میڈل کی بھی سفارش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقبال خان کے علاج و معالجات اور بحالی صحت میں کوئی کسر اثار نہیں رکھی جائے گی۔ عجیب پنجاب نے افسار سے ڈسچارج ہونے پر اقبال خان کو سرکاری ایمبولینس میں ان کے گھر پہنچانے کی بھی جو ہے وہ ہدایت جاری کی۔ اس وجہ سے عجیب پنجاب کا کہنا ہے کہ جو پولیس جو افسران ہیں اور اہلکار ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو ڈاکوؤں سے اور دہشت گردوں سے لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، غازی بنتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی فیملی کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ جی شکریہ مدثر۔ معاملے خصوصی وزیر اعظم رانا مبشر اقبال کی کھلی کچہری، علاقہ مکینوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ رانا مبشر نے کہا کہ تحریک انصاف نے ملک میں انارکی پھیلائی، عمران خان نے ملک کو معاشی طور پر ڈبویا ہے۔ محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں۔ جی یاسین، اپڈیٹ کیجیے۔ جی معاملے خصوصی وزیر اعظم رانا مبشر نے خیابین مین میں آج ایک کھلی کچہری لگائی، جہاں انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے مسائل حل کرنے کی ہدایات بھی دی۔ اس موقع پر رانا مبشر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی، بتایا کہ کیا زیادتی ہے یہ۔ جناح ہاؤس، جی ایچ کیو اور کپول اکیڈمی سمیت دیگر فوجی تنصیبات جلانے کے لیے کیا ہم نے کہا تھا انہیں، اور تحریک انصاف کے جلاؤ گھروں میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہمارے ساتھ پھر بھی کہتے ہیں زیادتی ہوگی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت کو ہم سب نے کہا کہ گراؤ جلاؤ کرو۔ تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، ان کا مشن ہی یہی ہے۔ تحریک انصاف نے ملک میں نارکی پھیلا کر پیٹرول بم کون بناتا ہے، یہ خود اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے اور ان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ میں رانا مبشر نے کہا کہ تحریک انصاف کا کردار ایک بچے کے سامنے آ چکا ہے۔ تحریک انصاف جو نیست و نابود ہو جائے گی، صرف پاکستان کی خدمت اور اس کی بقا کے لیے قربانیاں دینے والے ہی رہیں گے۔ پاکستان کے عوام کبھی عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ زمان پارک اب کوئی نہیں جانا چاہتا، کیونکہ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے ملک سے دشمنی کی ہے۔ عمران خان نے ملک کی معاشی طور پر ڈبونے کی بھی بلکہ ڈبو ہی دیا ہے۔ جی رانا بہت شکریہ۔ جی ٹھیک ہے محمد یاسین، بہت شکریہ۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ڈینگی کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران لاہور میں ایک اور کنفرم مریض رپورٹ۔ رواں سال شہر میں ڈینگی کے تصدیق شدہ 49 مریض سامنے آ چکے۔ ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی پر 397 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں۔ 10,000 افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ بدستور موجود ہیں اور شہر کے اندر جو ڈینگی کیسز ہیں اور جو ڈینگی لاروا ہے اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے اندر ایک کیس کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد رواں سال میں اب تک جو ڈینگی کے تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد 49 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دوسری جانب محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں یہ بھی متحرک ہے اور ان کی جانب سے جو ڈینگی SOPs بنائے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ رواں سال میں اب تک 397 افراد کے خلاف FIR بھی درج کروائی جا چکی ہے، جبکہ 10,000 افراد کو ڈینگی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر وارننگ نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ظاہر منیر کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں ڈینگی لاروا کی افزائش کو روکنے کے حوالے سے تمام تر جو ممکنہ اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں، جبکہ شہر کے
अंदर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो डेंगू हॉट स्पॉट है इन पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पे डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है ताकि इस दफ़ा शहर के अंदर जो डेंगू वायरस है इसको फैलने ना दिया जाए और शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें ताकि शहर को डेंगू से पाक रखा जा सके। जी आपका बहुत शुक्रिया। 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन कोई नहीं हो सकता। सियासी कारकुनान मस्जिदों को आग नहीं लगाते। मनसूबाबंदी के तहत जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारा दुश्मन वो नहीं कर सकता था जो इन लोगों ने करवा दिया। ये मस्जिद जलाने वाले, ये कुरान जलाने वाले, ये मुझे बताएं ये किस दीन के मानने वाले हैं? ये तो ना इस्लाम के मानने वाले लगते हैं ना किसी और दीन के मानने वाले लगते हैं, क्योंकि तमाम जो अदियान हैं उनका पैगाम अमन है। इस मस्जिद का कसूर क्या था? और फिर ये लगता है कि एक प्लानिंग के तहत जो लोग अंदर आए उन्होंने पहले से तरतीब तय की हुई थी कि इस घर को किस तरह जलाना है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा दुश्मन वो नहीं कर सकता था जो उसने इन लोगों से करवा दिया। आटे के बढ़ते दाम बेलगाम, मार्केट में आटे का कोई भी सरकारी निर्ख मुकर्रर नहीं। फ्लोर मिल्स और दुकानदार मनमानी कीमत पर आटा फरोख्त करने लगे। 10 किलो आटे का थैला 1400 रुपये तक पहुंच गया। चक्की का आटा 170 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में इस वक्त आटे की सूरत जूँ की तुम बरकरार है, इसमें बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। गुज़श्ता चंद हफ्ते ऐसे गुजरे हैं जिसमें आटे की कीमत में मनमाना इजाफा किया जा रहा है और फ्लोर मिलर्स और दुकानदार अपनी मर्ज़ी की कीमत लगाकर इस वक्त आटा बेच रहे हैं, क्योंकि हुकूमती निर्ख इस वक्त मार्केट में कोई भी मौजूद नहीं है। इस वक्त जो आम सूरत देखी जा रही है लाहौर शहर में, उसमें जो 10 किलो आटे का थैला है वो कम से कम 1350 से लेकर 1400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 20 किलो आटे का थैला तकरीबन 2750 से 2800 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि खुला आटा और चक्की का आटा भी इसी तेज़ी का शिकार है। इस वक्त एक सारफ हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे इस वक्त जो आटे की सूरत हाल है, आटे की महंगाई की? इस सूरत हाल ऐसे है कि गरीब बंदा सिर्फ दो टाइम का खाना नहीं खा सकता। ये आटा आपके सामने मैं लेकर जा रहा हूँ 1350 का, 1400 का, और मार्केट से बाहर ले लें 170 रुपये किलो मिल रहा है। तो क्या करे गरीब बंदा, किधर जाए? और इसको हुकूमत को फ़िक्र ही नहीं है। इस हुकूमत को फ़िक्र है उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, और गरीब का कोई एहसास नहीं है। गरीब मर रहा है, पिस रहा है, कोई चक्कर नहीं है। जब ये आए थे, ये कहकर आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, और महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब का सांस लेना दुश्वार कर दिया इन्होंने। आजकल महंगाई की क्या सूरत हाल है? आटा, चीनी, बहुत महंगाई है। गरीब आदमी तो रोटी नहीं कमा सकता, तो रोटी नहीं कमा सकता। हुण कित्थों असीं तुरे हैं, यानी कि किराए के हिसाब से तुरे हुए हैं। यानी कि माड़े बंदे ने की करना, गरीब आदमी ने की करना? महंगाई है, नहीं आटा ही नहीं बाहर। अरफीन इसी ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि ज़िंदगी इस वक्त मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है, और ना ही किसी और इदारे की जो कि आटे की कीमत कम कराने के लिए संजीदा नज़र आए। जी बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। सब्जी और गोश्त की खरीदारी आवाम की जेब पर मुसलसल भारी। ब्रायलर गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आया। फार्मी अंडे भी सस्ते नहीं हुए। टमाटर के अलावा हर सब्जी पहुंच से बाहर होती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई ही महंगाई, हर सू यही दुहाई। ब्रायलर गोश्त, सब्जियां और फल, गरीब के लिए खरीदारी मुश्किल। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो से कम ना हुआ। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए सस्ता, फी किलो निर्ख 602 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 290 रुपए फी दर्जन है। सब्जियों में सिर्फ टमाटर की कीमत पहुंच में है। टमाटर 40 से 50 रुपए फी किलो दस्तयाब। आलू 80, प्याज 60, लहसुन 400 और अदरक 800 रुपए फी किलो है। फूल गोभी 100 रुपए और बंद गोभी 50 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मटर 300, लीमू 400 और भिंडी 150 रुपए फी किलो बेची जा रही है। अवाम कहते हैं कोई भी महंगाई पर तवज्जो नहीं दे रहा। मुतवस्सित तबका इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चिकन इस वक्त तकरीबन कोई 600 के करीब है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। कोई एक साल पहले देख लें ये 300-350 में था। मतलब कॉस्ट बेशक बढ़ी होगी, उनकी फीड की कॉस्ट बढ़ी होगी, बाकी चीज़ें बढ़ी होंगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि आप उसको डबल कर दें। ये महंगाई 50% महंगाई ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी के बस से बात है।
रेहड़ियाँ भरी हुई हैं, फल भी है, अल्लाह पाक ने दिया, सब्जी भी है, मगर गरीब आदमी की जेब इजाज़त नहीं देती जी। फलों में सेब 400 और तरबूज 50 रुपए फी किलो है, जबकि केले दर्जा अव्वल 300 रुपए फी दर्जन है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। हफ्ता भर में मजमूई शरह महंगाई में मामूली कमी। रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने इस कमी को फीका रखा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.16% कमी वाक़ई हुई। इसके बावजूद हफ्ते के दौरान 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। हफ्ता भर की मजमूई शरह महंगाई में मामूली कमी के बावजूद गर्मी की लहर के साथ साथ महंगाई की लहर में भी तेजी है। हालिया हफ्ते 23 अशिया ज़रूरिया महंगी, 13 सस्ती, जबकि 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन, चाय की पत्ती, अंडे, टमाटर, आलू, दही, दाल माश, दाल मूंग, बीफ, मटन, खुला दूध, खुश्क दूध और बासमती टोटा चावल समेत बुनियादी जरूरियात जिंदगी की 23 अशिया महंगी हुई। प्याज, लहसुन, LPG, आटा, वेजिटेबल घी, चीनी, दाल, मसूर दाल, चना, सरसों के तेल और पेट्रोलियम मसनूआत समेत 13 अशिया की कीमतों में कमी आई और 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में दीगर अशिया के साथ साथ चिकन की कीमतों में 7.51% इजाफा हुआ। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपये माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में 41.67%, जबकि 44,176 रुपये माहाना से ज्यादा आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 47.09% रही। वफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह कम होकर 45.72% की सतह पर आई है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। कपास की कम अज़ कम इमदादी कीमत 8,500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कपास की ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात देने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कपास की फसल सूबे और काश्तकारों के लिए मुआशी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिपोर्ट करें हसन रजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में कपास की बुवाई के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत। इजलास में फैसला किया गया कि कपास के काश्तकारों को पानी, बीज, खाद समेत किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। सूबे भर में जाली अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी की गई। इजलास में सैटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे की तजवीज भी दी गई है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि कपास की कम अज कम इमदादी कीमत 8,500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात दिए जाएंगे। कपास की बुवाई का हदफ हासिल करने पर मुतालिका अमले की भी हौसला अफजाई की जाएगी। पंजाब में कपास की बुवाई का हदफ हासिल करना हमारा मिशन है। निगरान वज़ीर आला ने सूबे भर में पानी चोरी के वाक़यात की रोकथाम का भी हुक्म दिया। इजलास में मारूफ सनतकार और अपटमा रहनुमा गोहर इजाज, फवाद मुख्तार, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी ज़राअत, खजाना, आबपाशी और महकमा ज़राअत के हुकाम ने शिरकत की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। गुलशन रावी के इलाके ख्वाजा फरीद रोड इंतजामिया की लापरवाही की नज़र। टूट फूट का शिकार, सड़कों और दुकानों के सामने तजावुज़ात की भी भरमार। राहगीरों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद सूरत हाल बाले जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। इस वक्त हम लोग गुलशन रावी के इलाके मौजूद हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रोड का नाम है और रोड की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। रोड पे बिल्कुल अबतर हालत रोड की दिखाई देती है। ना सड़क बनी हुई है, कच्चा सड़क है। जब इलाका मकीनों के ना जब बारिश होती है यहाँ पर तो सड़क जो है, क्योंकि गहराई का इलाका है, नीचा इलाका है आम रोड से, तो तालाब का मंजर पेश करना शुरू हो जाते हैं। इंतजामिया को मुतादिद मरतबा जो है यहाँ पर दरख्वास्त दायर की, लेकिन कोई नहीं आता। उसके अलावा यहाँ को बड़ा मसला यहाँ का ये है कि ख़राब रोड के साथ साथ नजायज़ तजावुज़ात बहुत ज़्यादा है। कि अपना कैमरामैन शबर आपको मेरे रकब में दिखा सके तो यहाँ पर दुकानों के आगे नजायज़ तजावुज़ात कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर पार्किंग स्टैंड्स बन चुके हैं। लोगों ने दुकान से कम 10 से 15 फुट तक जो है अभी चीज़ें लगाई हैं, जो कि रोड को भी तंग करता है। उसके अलावा रोड की हालत भी इतनी खस्ता है कि मुतादिद मरतबा दिन में यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम हो जाती है, क्योंकि रोड इतना तंग हो जाता है जगहों की वजह से और नजायज़ तजावुज़ात के बाइस के रोड तंग हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, क्योंकि रोड भी ख़राब है, ट्रैफिक का भी दबाव बढ़ जाता है। इलाका मकीनों को परेशानी होती है। इनका कहना है कि कारोबारी मराकिज़ है यहाँ पर और रोड ख़राब होने की वजह से और नजायज़ तजावुज़ात होने के बाइस जो है ट्रैफिक के दबाव की वजह से यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ नहायत मुतासर हो रही है। इसलिए जल्द से जल्द कोशिश की जाए, कोई हिकमत अमली बनाई जाए ताकि क्रैकडाउन किया जाए, जल्द से जल्द किसी भी तरीके से इस जगह के मसाइल को और रोड को तरजीही बुनियादों पर जो है ठीक किया जाए। जी मुबीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में अहम इजलास में वफाकी वज़रा समेत नून लीगी रहनुमाओं की शिरकत। आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म की बजट में इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने अपनी ज़िद की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया।
जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। जी हसन। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कमीशन ऑडियोज की हकीकत जानने के लिए इनकी फॉरेंसिक ऑडिट करवा सकता है और आला अदालतों पर अवाम का इस्तेमाल बुनियादी चीज़ है। जजों की साख पर कोई आँच आए तो उंगलियाँ उठती हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ऑडियो लीक कमीशन कायम किया। इमरान न्याजी ने अपनी जिद और अनाज की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया और इमरान न्याजी ने जो मुल्क को नुकसान पहुँचाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क को कौम को इकट्ठा करने, हालात बेहतर बनाने, अदारों और अवाम में एतमाद की फिजा बरकरार रखने के लिए शहबाज शरीफ ने वज़रा को कहा कि हिदायत करते हुए कहा कि वो खूब मेहनत करे। मुल्क, कौम और सब अदारे हमारे हैं, इसलिए इनमें दरारें डालने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। जी आपका बहुत शुक्रिया हसन। गर्मी के सताए शहरियों ने नहर पर डेरे जमा लिए। बच्चों और नौजवानों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए खूब डुबकियां लगाईं। बच्चों और बड़ों का कहना है कि गर्मी को भगाने के लिए नहर बहुत अच्छा पॉइंट है। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर के शहरियों ने भी इस शिद्दत को तोड़ने के लिए नहरों का रुख कर लिया है। इतवार के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो नहर पे नहाने के पहुंच चुकी है। मेरे पीछे अगर आप क्राउड देख सकते हैं तो ये सारा क्राउड जो है नहर में नहाने के लिए पहुंचा है। मज़ीद इन्हीं से ही बात करते हैं। आप बताइएगा, इतवार के रोज़ नहाने के लिए आए हैं? जी सर, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, दोस्तों के साथ प्लान में ना तो हम यहाँ नहाने आ गए हैं। जी आप बताइएगा, आप भी नहाने हैं, क्या प्लान बना था? इतवार का रोज़ है, गर्मी है, क्या कहेंगे? घर में बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, लैंड नहीं थी। कज़न वगैरह है, भाई वगैरह है, उन्होंने कहा चलो नहर पे चलें, नहाने आए हैं, इधर इंजॉय कर रहे हैं, खाना भी खाया, मज़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इन शहरियों की बात सुनी। इनका यही कहना था कि इतवार का रोज़ था, दोस्तों के साथ प्लान बना था, गर्मी, घर लाइट नहीं थी आ रही, दोस्तों के साथ प्लान बना नहर पे जाने का, तो नहर पे नहाने के लिए पहुंच चुके हैं। जबकि आपको बताता चलूँ 43 डिग्री का टेम्परेचर है और इसी टेम्परेचर का ज़ोर तोड़ने के लिए जो है वो नहरों का रुख किया है। जबकि आपको बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी नहर में नहाने के लिए वो पाबंदी लगाई गई है, लेकिन शहरियों ने गर्मी का ज़ोर तोड़ने के लिए पाबंदी को भी जो है वो हवा में उड़ा दिया है। जी आपका बहुत शुक्रिया। शहरी गर्मी भगाने के लिए ठंडे मशरूबात को तरजीह देने लगे। संदल, बादाम समेत दीगर इक़साम के मशरूबात की मांग बढ़ गई। शहरियों का कहना था कि गर्मी में मशरूबात तवानाई फराहम करते हैं। हमारे नुमाइंदे राहिल अली फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है और लोग जो है वो गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात जो है वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आता है। खुसूसन संदल का शरबत, बादामों का शरबत, गन्ने का रस के समेत दीगर जो मशरूबात हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड पर। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जिसमें बादाम का शरबत है, संदल का शरबत है। और ये शरबत जो है ये गर्मी के मौसम में जो है वो फ़रद बख्श महसूस होते हैं। लोग जो है वो गर्मी का मुकाबला करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रोड पे बहुत से लोग सफ़र कर रहे होते हैं और इतनी गर्मी में जो है वो अपनी एनर्जी को बरकरार रखना भी जो है वो किसी चैलेंज से कम नहीं होता। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, ये मशरूबात किस हद तक जो है वो जिस्म को तवानाई देते हैं इस गर्मी के मौसम में? शरबत ऐसे हैं बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल ऐसा जिस डिगन लगे हैं, मगर एक गिलास ही शरबत पीता तो बिल्कुल असी अपनी हालत असली जा गए। बिल्कुल शरबत पी के साथ तवानाई बहाल होती है। और भी लोग इधर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये सर गर्मी के लिए बचाने के लिए ये एक मफीज़ है और मैदे के लिए भी अच्छा है। और जो गर्मी के वो ठंडक वो ख़त्म हो जाए। जो बादाम वाला और संदल वाला ये ना मिले तो कम से कम पुदीने वाला मिल जाए, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि जो अंदर मैदे की गर्मी है ना वो दूर करता है। गर्मी दूर करते हैं जिस्म की, क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है शहर लाहौर का, और इस गर्मी के मौसम का मुकाबला करने के लिए प्यास भी जो है वो ज़्यादा लगती है। तो लोग जो है वो मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक तरफ अपनी प्यास भी बुझाई जा सके और दूसरी तरफ मशरूबात के इस्तेमाल से जो थोड़ी बहुत जिस्म को तवानाई हासिल होती है उसका भी जो है वो फ़ायदा उठाया जा सके। जी शुक्रिया राहिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह का इजलास, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत, सानिया 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि किसी बेगुनाह से ज़्यादती नहीं होगी, कोई मुजरिम सज़ा से बच नहीं पाएगा। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत
लाहौर में आला सतह का इजलास हुआ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सिक्योरिटी हुक्काम की शिरकत भी हुई है। सानिया 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारियों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं हसन रजा से। जी हसन। देखिए, ये इजलास जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में जारी है और इस इजलास में पंजाब के ज़िम्मेदारान, मुतलका इंतज़ामी अफसरान और वफाक के वज़रा और मुतलका ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। इजलास में पंजाब में जो 9 मई के हवाले से जो सान्या हुआ उसके हवाले से जो अब तक की गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां की गई हैं उसके हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। जी शुक्रिया हसन।